Hallelujah. Praise the blessed name of the Lord. Blessed name of the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus of Nazareth, the King of Kings. Hallelujah. Glory to the King. Glory to the King of glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we bless you. Lord, we praise your holy name. Lord, we magnify you. We exalt you. Hallelujah. We exalt you, Jesus. We exalt you. Hallelujah. We exalt you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, we bless your holy name. Lord, we pray for your daughter Sunita Kaur as they go to witness and pray in that family. Lord, may you give that grace to that lady. May you open her eyes that she may remove all those objects that are not pleasing in your eyes, Lord. Lord, send your angels with her. Send your angels, Lord, and convict that lady's heart that she may remove the things that needs to be removed from her house, Lord. Bless her daughters, bless her household, Lord, I pray. Hallelujah. Lord Jesus, I pray for Durgesh Kumar, for your hand to be upon him. For Aaron Sugrim, for your hand to be on him, Lord. Jasveer Surinder and Simon Masih, that your hand be upon them, Lord God. I speak your blessing, Lord, and anointing and favor over Lena Davidson, your blessing and your anointing, Lord Jesus. Jesus, we give you praise. Hallelujah. We give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. We bless you. We bless you, Lord. We bless you, bless you. Bless you, bless you, bless you. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, bless you, bless you, bless you. Bless you, Lord. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus, 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 Lord. We bless you. Bless your name, Lord. Bless your name. Lord Jesus, we bless your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Lord, we bless you this morning. Lord, we praise you this morning. Lord Jesus, we glorify your name, Lord. Lord Jesus,
Blessed King of glory. Lord, we thank you. We thank you, Lord. Hallelujah. Father, I ask you to bless everyone that is connected online. Father, in the name of Jesus, as we have a brief meditation and devotion for a very short time, that Holy Spirit will flow, Lord God, that your mighty hand will move. Lord, that your mighty, precious, holy hand will move. Lord, we give you praise. Lord Jesus, we give you glory. Hallelujah. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Hallelujah. सबको जय मसीह की। आज थोड़ा सा अर्ली हम कर रहे हैं क्योंकि कल शाम का एक सेशन मिस हो गया, तो अभी थोड़ा सा अर्ली हम कर रहे हैं। एंड देयर आर नॉट वेरी मैनी नंबर ऑफ पीपल बिकॉज दिस इज़ रियली टू अर्ली फॉर देम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम अपने उस सब्जेक्ट को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। मैं कल आपको बता रहा था कि रोमियो 11:17 की कलीसिया जैतून का वृक्ष है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया गलतियों की पत्री 4:26 कि यरूशलेम हमारी माता है, और जो यरूशलेम हमारी माता है वो स्वर्गीय है, स्वर्ग से है। और यहोवा हमारा पिता है। यरूशलेम जो हमारी माता है वो कलीसिया भी है जो हमारे पिता की दुल्हन है, और इज़राइल भी है, सच्चा इज़राइल भी है जो यहोवा पिता की दुल्हन है। हालेलुया। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये यरूशलेम स्वर्गीय है, ये पृथ्वी का नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11:8, वहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 11:8 में पढ़िए वचन, शायद कभी आपने देखा नहीं इस वचन को। देखिए अपनी बाइबल में। शायद ये वचन आपने कभी ऐसे देखा नहीं होगा। देखें इसे। प्रकाशित वाक्य 11:8 में लिखा है, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਵਿਧ ਨਾਲ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। प्रकाशित वाक्य 11:8 क्या बता रहा है कि दो गवाह जो आएंगे उनको मार दिया जाएगा और उनकी डेड बॉडीज उस नगर में पड़ी रहेंगी जिसे परमेश्वर स्पिरिचुअली सदोम, गमोरा और मिस्र कहता है। और ये वही शहर है जहाँ पे हमारे प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया था, अर्थात यरूशलेम। ये पृथ्वी का वो यरूशलेम का हिस्सा जो करप्ट है परमेश्वर की दृष्टि में। इस वचन को शायद कभी आपने नहीं देखा होगा। और मैंने कल आपको बताया प्रकाशित वाक्य 1:1 में कि कैसे ये साइन है। प्रकाशित वाक्य एक साइन है, सिमियन। इट इज़ ए साइन जो पिता ने यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह के चेहरे का प्रगटीकरण है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
95% चर्चेस के अंदर पास्टर पढ़ाते नहीं, सिखाते नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पास्टर को खुद नहीं आती ये पुस्तक। लेकिन ये ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़ने या सुनने या बोलने में भी बरकत है। वचन में लिखा है पढ़ने वाला और सुनने वाला बरकत पाते हैं। और ये इतनी अद्भुत पुस्तक है, ये यीशु मसीह के चेहरे का प्रकाश है। यदि आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, पुराना नियम समझेंगे, तब आपको ये समझ आएगी। समझ रहे हैं आप? तो ये चिन्ह है, मैंने आपको कल बताया था। चिन्ह का मतलब जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं, जैसे साइन आता है रोड के ऊपर, आर्च दिखाई होती है मैकडॉनल्ड की, वो साइन बताता है कि मैकडॉनल्ड आने वाला है। वो साइन कुछ नहीं अपने आप में, वो साइन किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। अगर उस साइन के पास चले जाएं, साइन के नीचे खड़े रहें, तो आपको बर्गर नहीं मिल सकता ना फ्रेंच फ्राइज। ऐसे ही ये साइंस जो हैं अपने आप में डेंजरस नहीं है। आप रोड पे जा रहे हो, तो रोड पे साइन लगा है रेलवे क्रॉसिंग का, आप रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके वहीं खड़े रहें तो आपको कोई डेंजर नहीं है। लेकिन वो साइन ये बता रहा है कि अगर आप देख के उस जगह को क्रॉस नहीं करोगे और ट्रेन आई, तो दिस कुड बी डिजास्ट्रस। So this is sign. The book of Revelation is a sign. It is given for a sign. Genesis, Revelation chapter 1 verse 1. The Greek word is Simeon, which means it is given as a sign, as a beacon, as a flag, as a billboard. This is God's billboard. The Lord God is unveiling to the earth what is coming upon the earth. And terrible, terrible times are coming upon the earth. People would brand people who tell them the truth as gloom and doom prophet, or many will call them conspiracy theorists. And there would be a league of those false prophets that will be prophesying your best is about to come. The year 2020 is going to be a year of breakthrough. 2020 is going to be a year of superabundance. 2020 year is going to be a year of perfect vision. 2020 is going to be a year of astronomical increase. Blah, 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 blah. All these kind of false prophecies and predictions are made in December 2019. But all their false predictions fell flat and are biting dust because they were false harbingers. Turn to the Word of God. Don't listen to these false prophets. ये false prophets जो हैं, they are not speaking from God. They are prophesying from the flesh, they are prophesying from their soul, and they are prophesying by the demon spirits. There are demonic entities. Hallelujah. मैंने एक बड़े फेमस प्रॉफिट हैं साउथ में, मैं उस मीटिंग में खुद था। 2000 में वो मीटिंग हुई, and that meeting was held in Talkatora Stadium in New Delhi. That prophet is still a prophet. I will not name the name. He has a big ministry. He prophesied there that in the year 2020, India will be 50% Christian nation. A famous prophet, he still has a very large ministry. But you know that prophecy was not from the Lord. अब उसमें समझने की क्या ज़रूरत है, अब तो आपको पता ही लग गया. That prophecy originated in the flesh
That prophecy was given by demons. That prophecy was just a fleshly sensation. That was not from the Lord. प्रभु की ओर से नहीं थी वो prophecy. सुनिए, मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ वचन देता हूँ, जल्दी जल्दी सुने प्रभु क्या कहता है. The Lord says in Deuteronomy chapter 13 verse number 3, the Lord says to the people of Israel, you shall not hearken unto the false prophets. व्यवस्था विवरण 13 के 3 में, तुम झूठे नबियों की बातें मत सुनना. परमेश्वर ने झूठे नबियों को एलिमिनेट नहीं किया. God just didn't kill all the false prophets. He said they will be among you. But what did God say? God say you make discernment. And God said you should not listen to the false prophets. व्यवस्था 13 का 3 सुने, पंजाबी में पढ़ता हूँ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਅਥਵਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. Here is a very powerful scripture, Deuteronomy 13:3. The Lord is saying, the Lord is letting the false prophets among you so that they may make false predictions, but you should not hearken. But thereby God is testing you whether you love him or not. क्या मतलब है इसका? अगर आप झूठे नबियों के पीछे भागते हो, झूठी भविष्यवाणियों के पीछे, तो आप ऑलरेडी अंडरस्कोर कर रहे हो कि आपका प्यार प्रभु से नहीं है. सेंसनलिज्म के साथ आपका प्यार है. You don't love the Lord, but you love all those kind of witchcrafty things. This is what the scripture is saying. Turn to Deuteronomy 18. Turn to Deuteronomy 18 and verse number 20. Deuteronomy 18:20. Listen now. ਪਰ ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਥਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ. Lord is saying, he who will prophesy out of his own will, not being moved by the Holy Spirit, and he who is mixing witchcraft, he who is mixing sorcery, channeling the spirits, he is using sorcery, witchcraft, channeling and all dark sources to bring the information, he should be killed. अब प्रभु का वचन बता रहा हूँ आपको. मेरे संग पढ़िए जपन्या नबी की पुस्तक. जपन्या, पंजाबी में सपन्या बोलते हैं. सपन्या की पुस्तक, उसके चलिए आप जल्दी से 3rd चैप्टर में. जपनाया चैप्टर नंबर 3. जपनाया चैप्टर नंबर 3 और उसके 3 और 4 वचन को सुने. जपनाया, सपनाया, और इंग्लिश में जपनाया, पंजाबी में सपनाया चैप्टर नंबर 3. लेट मी रीड फ्रॉम वर्स नंबर 3. क्या कहता प्रभु? ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਈ ਸੰਝ ਦੇ ਬਘਿਆੜ ਹਨ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ. ਉਸ ਦੇ ਨਬੀ ਛਲੀਏ ਅਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ. ਉਸ ਦੇ ਯਾਜਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ. देखिए प्रभु कैसे जजमेंट दे रहा है. प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है उसके सरदार, ये किंग्स हैं, रूलर्स हैं, जिन्हें प्रभु ने मुकर्रर किया इजराइल पे, वो शेर की तरह लोगों को खा जाते हैं. और जो काजी हैं, जजेस, एक्सक्यूज मी, और जो काजी हैं, जो जजेस हैं, वो बघियाड़ हैं, वो भी लोगों को खा रहे हैं. जो जस्टिस सिस्टम है एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इट इज़ लूटिंग गॉड्स पीपल.
God is talking about the days when He sent the judgment over Israel, when He provoked the heathen nations, when He agitated the hearts of the heathen kings. They came and invaded the land of Israel, and they took the people of God captive. The reason was their administrators, they were looting people, and the judiciary, the justice system was absolutely corrupt. They will take away everything from people. और लिखा है चौथे वचन में, उस दिन नबी छलिए थे बेईमान। नबी क्या कर रहे हैं? पहली 3 आयत बताती है पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करप्ट है। और चौथी आयत बताती है जो उनका धार्मिक सिस्टम है, जिसे हम तो धार्मिक नहीं मानते, स्पिरिचुअल मानते हैं, वो भी करप्ट है। उसके नबी छलिए, छलिए का मतलब जो लोगों को छलते हैं, ठगते हैं, जो लोगों से झूठ बोलते हैं, वो प्रोफेसी की दुकान लगाते हैं और बढ़िया बढ़िया प्रोफेसी लोगों को देते हैं, बढ़िया बढ़िया। God is going to prosper you. God is going to bless you. The year of your fulfillment is coming. I have a millionaire anointing. I release the millionaire anointing on you. कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर यीशु मसीह की anointing है, बैप्टिज्म ऑफ फायर लेने की, सफरिंग की anointing है, पवित्र आत्मा के आग के दरिया में से निकलने की anointing है। ऐसे नबी नहीं उठ रहे कोई, ये सब फ्रॉड हैं, झूठे हैं। इन्होंने यहोवा के कलाम को परवर्ट किया। वो अफ्रीका के हों, पूरे अफ्रीका में से उठ रहे हों, इंडिया में से उठ रहे हों, या अमेरिका के हों, दे आर फॉल्स एमिसरीज, दे आर फॉल्स प्रॉफिट्स। मैनी इन अफ्रीका आर कॉन आर्टिस्ट, दे आर चार्लटन्स, दे आर नॉट जेन्युइन वॉइसेस ऑफ गॉड, जिनकी हमारे इंडिया में नकल कर रहे हैं। इंडिया के कई अच्छे अच्छे पास्टर, सुलझे हुए पास्टर, उनको बुलाते हैं उन फॉल्स प्रॉफिट्स को, वो आके लोगों के अकाउंट में पैसा गिरवाते हैं, फिर उनको मीडिया पे दिखाया जाता है, और वो पैसा कुछ नहीं होता, फेक होता है सब। वो चाहते हैं कि उनकी चर्च बढ़ जाए, एस्ट्रोनॉमिकली चर्च बढ़े, हज़ारों की तादाद में लोग हों, जितने ज़्यादा लोग हों। मैं किस सबको जज नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे भी होंगे खुदा के बंदे, लेकिन बहुत तेरे ऐसे हैं कि जितने ज़्यादा लोग चर्च में होंगे उतनी ज़्यादा मनी होगी, उतना लेविश हमारा लाइफस्टाइल होगा, उतना बड़ा मेंशन, महंगे अपैरल्स, एक्सपेंसिव कार्स, और उतनी ज़्यादा हमारी साख होगी। और सोचते हैं कि उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे हम रूहों को जीतने में। सबसे बड़ा झूठ ये है जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल ने दी है। द बिगेस्ट लाई एवर स्पोकन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सपन्या 3:4 में, उसके नबी छलिए और बेईमान हैं, उसके याजकों ने पवित्र स्थान को भ्रष्ट किया है, परमेश्वर की टेंपल को पल्यूट किया गया है। खुदा का घर जहाँ पे परमेश्वर वास करता है, उसको पल्यूट किया गया है। आपको मालूम क्यों यहोवा अपने घर को छोड़ के चला गया? इज़िकियल नबी की पुस्तक पढ़िए, इज़िकियल नबी की पुस्तक 8 अध्याय से पढ़ना शुरू कीजिए। इज़िकियल प्रभु से ये पूछता है, इज़िकियल को गुलामी में ले गया राजा, और गुलामी के देश में जाके पूछता है कि यहोवा परमेश्वर आप तो विराजमान थे करूबों के ऊपर, और आप तो टेंपल के अंदर थे, हैकल में, तो दुश्मन कैसे घुस गया हैकल के अंदर? हाउ? ये सवाल था उसका। कैसे दुश्मन आपकी उस हैकल को, जिसके विषय में आपने वाचा बांधी थी कि हर प्रार्थना जो यहाँ से होगी मैं उसे सुनूंगा, कैसे एक दुश्मन, एक बेबीलोनियन पेगन राजा अंदर घुसा और कैसे आपकी हैकल को लूट के ले जा गया वो? हाउ इज इट पॉसिबल? तो वचन को देखिए,
ये बहुत सच्चा खुदा का दास है, जवान है इज़िकियल, और इसको इसका दिल फट रहा है कि क्यों इज़राइल लुट गया, क्यों यहोवा की टेम्पल नेस्ता नाबूद हो गई। ही कुडंट हैंडल इट कि करूबों पे विराजमान सेनाओं का यहोवा क्यों उसने दुश्मनों को, ये इजरायली जानते हैं कि वो तो फौजों की फौजें मर जाती, ढेर हो जाती वहीं पे अगर यहोवा लड़ता। क्यों यहोवा परमेश्वर ने ऐसा किया? तो प्रभु उसे वचन पढ़िएगा हिजकिय्याल ध्यान से, हिजकिय्याल नबी की पुस्तक के 3-4 अध्याय से पढ़ना शुरू कीजिए। यहोवा का रूह आता है और उसको बालों से पकड़ता है और यहोवा का रूह उसे उड़ा के ले जाता है इराक से। वो इराक में था जिसे हम बेबीलोन बोलते हैं। इराक से यहोवा का रूह उसे उड़ा के यरूशलेम ले आता है। और फिर पढ़िए 8 अध्याय 9, 10, 11, 12। प्रभु दिखाता है कि हैकल के अंदर कितने गंदे काम कर रहे थे याजक। हैकल के अंदर मूर्ति पूजा थी, हर तरह की गंदगी थी। सूर्य देवता की पूजा की जा रही थी हैकल में। हैकल में निम्रोद, सेमरामिस, तमूज की पूजा थी, जो मैं आपको बताता हूँ प्रभु जिससे घृणा करता है। बाल, ग्रोब और आकाश के गणों की पूजा, ये 3 बातें हैं, बाल, ग्रोब और आकाश के गणों की पूजा। बाल और ग्रोब का मतलब है स्त्री और पुरुष के प्रजनन अंगों की पूजा करना, जो दुनिया की हर संस्कृति, हर धर्म में मिलेंगे आपको। ये बेबीलोन से शुरू हुई है प्रथा। और आकाश के तारों की, राशि फलों की पूजा करना, इससे यहोवा परमेश्वर घृण करता है। पूरी मूर्ति पूजा, हर तरह के अंधकार के काम इसके अंदर समा जाते हैं इन 3 चीज़ों में। गॉड सेज बालीम, ग्रोव्स एंड द स्टार्स इन द स्काई। हालेलुया। तो प्रभु बताता है कि क्यों मैंने ऐसा किया। फिर प्रभु उसको दर्शन देता है। 4 दर्शन मिलते हैं हिजकिय्याल को। वो देखता है कि ऐद के संदूक के ऊपर जो यहोवा की हजूरी है, यहोवा परमेश्वर ऐद के संदूक के ऊपर अपना सिंहासन लगाता था। आप वचन ध्यान से पढ़ें, आप गौर से पढ़ें पुराना नियम, आपको समझ आएगा। यहोवा आपकी आंखें खोलेगा, बुद्धि और दिल खोलेगा, तब आपको समझ लगेगी। यहोवा परमेश्वर का वास टेम्पल में होता है। यहोवा का जो थ्रोन है वो टेम्पल में लगता है। यहोवा का जो राज दरबार है वो परमेश्वर की हैकल में ही लगता है। यहोवा हैकल में विराजमान होता है। हालेलुया। यहोवा का सिंहासन उसकी हैकल में होता है, वो करूबों पे विराजमान होता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या लिखता है सपन्या की पुस्तक में? पढ़ें सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय का 4 वचन। याजकों ने परमेश्वर के पवित्र स्थान को भ्रष्ट कर दिया, और सबसे बड़ा पाप इसके बाद क्या किया? परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ दिया। भाइयों और बहनों, ये कोरोना वायरस जो जजमेंट है, ये यही है। जब भी प्रभु के कलाम को, जब ये काम होता है, सपन्या 3 अध्याय का 3 और 4, तब प्लेग आती है पृथ्वी पे। तब ये प्लेग आएगी। यहोवा के कलाम को तोड़ मरोड़ देते हैं झूठे नबी, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठा कलाम देने वाले। क्या कहता है प्रभु? मैं इसके ऊपर फिर झूठे नबियों पे फिर शाम को कंटिन्यू करूँगा। मैं आपको वही वचन देता हूँ जो मैंने कल दिया। पढ़ें प्रभु क्या कहता है हिजकिय्याल से। हिजकिय्याल से क्या कहता है? हिजकिय्याल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 वचन में चलें। हिजकिय्याल 2 के 6 में सुनिए ध्यान से, क्या कहता प्रभु? प्रभु कहता है, हे अते तू हे आदमी दे पुत्र, तू उन्हां कोलों ना भै खाई ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। क्या कह रहा प्रभु इज़िकिय्याल को? अभी इज़िकिय्याल जो है
इज़ीकियल को क्या दर्शन दे रहा प्रभु, और क्या कह रहा है प्रभु? इज़ीकियल से कह रहा है, तू किनके बीच में रह रहा है? झाड़ी और कांटों के बीच में, और तू बिच्छुओं के बीच में रह रहा है। ये झाड़ियाँ और कांटे हैं झूठी शिक्षा देने वाले, और ये बिच्छू जो हैं ये हैं झूठे नबी। ये परमेश्वर कह रहा है। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, स्कॉर्पियन है इंग्लिश में वर्ड ये, और ये वर्ड दो तरह से यूज़ हुआ है इज़ीकियल 2:6 में। वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है स्कॉर्पिज़ो, और नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, अगर आप हिब्रू ग्रामर में जाएंगे, स्कॉर्पियास। स्कॉर्पिज़ो जो वर्ड है, स्कॉर्पिज़ो यहाँ पे जो वर्ड आया है 2 का 6, स्कॉर्पिज़ो का मतलब, जिसे स्कॉर्पियन निकलता है, लेकिन स्कॉर्पिज़ो का मतलब है स्कैटर करना, ऐसे बिखेरते जाना, खलेरते जाना, बिखेरते जाना। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भेड़ों का अच्छा गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता हूँ। फिर यीशु मसीह कहते हैं, जो झूठा गडरिया है, जो भाड़े का गडरिया है, भाड़े का, भेड़ें उसकी नहीं है, हायरलिंग है वो भाड़े का गडरिया है। वो क्या करता है? वो जब देखता है कि भेड़िया आ रहा है तो वो भेड़िए से लड़ता नहीं है भेड़ों की रक्षा के लिए, वो भेड़िए को देख के खुद भाग जाता है। हालेलुया। भेड़िए को देखता है और भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है। आपको मालूम हमारा गडरिया कैसा है? जब उसको पकड़ने के लिए आए गत्समनी के बाग में, 11 उसके चेले उसके साथ थे, वो 11 चेले उसकी भेड़ें थे। आपको मालूम क्यों उनको यीशु मसीह को आइडेंटिफाई करवाना पड़ा? यीशु मसीह की पहचान क्यों करवानी पड़ी? यीशु मसीह की अंतिम घड़ी में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह के जलाल में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह जैसे ही लग रहे थे, इसलिए यहूदा इस्करियोती को चुम्मा लेके यीशु मसीह को सिंगल आउट करना पड़ा ताकि रोमी फौजी उसे पकड़ लें। तो जब वो पकड़ने के लिए आए तो यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों को पीछे कर दिया और यीशु मसीह आप आगे गया। आज देखिए आप लोग क्या करते हैं। बहुत से धर्मगुरु, जब पुलिस आती है कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उनके श्रद्धालु पुलिस को खदेड़ देते हैं। आपने देखा हमारे देश में बड़े बड़े दंगे भी करवा देते हैं, बहुत बड़े बड़े। अपने गुरु को पुलिस को हाथ नहीं लगाने देते, खुद आके ढाल बन के खड़े हो जाते हैं भेड़ें। और कई जगह तो जो गुरुजी होते हैं वो औरतों के कपड़े पहन के भाग भी जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु भेड़ों के लिए जान देता है। हमारा प्रभु ये जानता है कि स्वर्गीय पिता की आज्ञा, स्वर्गीय पिता की अनुमति के बगैर कोई भी यीशु मसीह को छू भी नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? वो अपने आप को धर्मी न्यायी के हाथ में सौंपता है। यीशु मसीह अपने आप को सरेंडर करता है। वो हायरलिंग नहीं है। जो हायरलिंग है, जो भाड़े का गडरिया है, वो भेड़ों को छोड़ देता है जब भेड़िया आता है और भाग जाता है और भेड़ें तितर बितर हो जाए। आपको मालूम, आपको शायद मैंने एक बार एक मैसेज दिया भेड़ों के विषय में। भेड़ एक ऐसा कोमल, ऐसा निर्दोष जानवर है। भेड़ का गडरिये के बगैर कोई वजूद नहीं है। अगर गडरिया नहीं तो भेड़ मर जाएगी। भेड़ का जीवन गडरिये के बगैर है ही नहीं। भेड़ को 3-4 फुट से आगे दिखाई नहीं देता है। भेड़ केवल सुनती है, और सुनती क्या है? अपने गडरिये की विसल। गडरिया विसल मारता है, भेड़ उस रेजोनेंस, उस फ्रीक्वेंसी के पीछे पीछे जाती है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? वी वॉक नॉट बाय साइट बट वी वॉक बाय फेथ। द शीप ऑफ जीसस आर नॉट डेस्टिन्ड टू वॉक बाय साइट, दे आर डेस्टिन्ड टू वॉक बाय फेथ। हालेलुया।
तो ये जो गडरिया है, जो भाड़े का है, ये क्या करता है? स्कैटर करता है। स्कॉर्पिजो है, ये स्कॉर्पियन है। प्रभु क्या कहते हैं इज़िकियल को कि तू कांटे और झाड़ियों के बीच में है और तू बिच्छुओं के बीच में, स्कॉर्पियन के बीच में। ये स्कॉर्पियन है फॉल्स प्रॉफिट। फॉल्स प्रॉफिट, झूठे शिक्षा देने वाले, झूठे नबी, ये हैं स्कॉर्पिजो, जो भेड़ों के लिए जान नहीं देते। भेड़ों की ऊन, भेड़ों के दूध से इन्हें वास्ता है। पढ़िए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय का 15 वचन, जल्दी से पढ़ें। क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है झूठे, पंजाबी में लिखा, झूठे नबियां तो होशियार रहो, झूठे नबियों से सावधान। हालेलुया। They are there, they were there during the time of Jesus, they were there during the time of the apostles, they have always been there, they are here right now, all these false prophets. What is Jesus saying? He is saying, I have not immuned you from the false prophets, but I will give you discernment. I will open your eyes, you will recognize them. I will give you wisdom, I will give you discernment, I will give you ability to not fall into their trap. तो ये वचन देखें क्या कहता है, उनसे सावधान रहो जो तुम्हारे पास भेड़ के रूप में आते हैं, लेकिन है क्या वो? क्या है वो? भेड़िए हैं। वो आते किस रूप में हैं? भेड़ के रूप में। These are false prophets and these are false teachers. वो भेड़ के रूप में आते हैं, बट इनवर्डली, इनसाइड क्या है वो? भेड़िए हैं। आपको मालूम इज़राइल में क्या होता था? भेड़िया जो गडरिए होते थे, वो अपनी भेड़ों की ऊन को उतारते थे और अपनी भेड़ों की ऊन से बिल्कुल ड्रेस बनाते थे अपनी बॉडी को कवर करने की, और पूरी की पूरी वूल वैसे होती थी। वो वूल प्रोसेस नहीं की होती थी जैसे आज वूल को आप प्रोसेस कर लेते हो और वूलन गारमेंट बनाते हो। वो बिल्कुल वैसे ही वूल को लेके बहुत ही रॉ स्टाइल में वूल के कपड़े बनाते थे और वैसे ही वूल पहनते थे, और अगर देखा जाए तो वो भी भेड़ की तरह दिखाई देते थे, क्योंकि वैसे ही उस भेड़ को स्ट्रिप करते थे और वैसे उसे दे यूज टू पुट ऑन, तो देखने में वो भेड़ ही लगते थे। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है वो देखने में तो भेड़ लगते हैं। दैट इज व्हाट जीसस इज सेइंग, क्योंकि उन्होंने भेड़ की वूल पहनी हुई है। दे लुक लाइक शीप बट दे आर नॉट शीप। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु उनके विषय में? सुनिए कुछ वचन। इज़िकियल नबी की पुस्तक, इज़िकियल 34 में चलिए, सुने कुछ वचन। इज़िकियल 34 में क्या कहता है प्रभु? इज़िकियल 34 के पहले वचन से पढ़ रहा हूँ, सुने ध्यान से। यहोवा दा वचन मेरे को आया, हे आदमी दे पुत्र, अगमवाच इजरायली आजड़ियां दे विरुद्ध अगमवाच, अते तू उन्हां नूं आख, प्रभु यहोवा आजड़ियां नूं इउं फरमाउंदा है, इजरायली आजड़ी ते अफसोस जिहड़े अपने आप नूं पालदे हन, कि आजड़ियां नूं नहीं चाहिदा कि भेडां नूं चारन। वट डू दीज शैपर्ड डू? Ezekiel 34. Read Ezekiel 34 verse number 1. What is the Lord saying? The Lord is saying, prophesy against the shepherds. You know, the Lord commanded Jeremiah to prophesy against the false prophets. Ezekiel is commanded by God to unleash an oracle against the false shepherds. These are false shepherds. And what is the Lord saying? प्रभु क्या कहता है इनको? प्रभु कहता है वो unto you, हाय तुम्हारे ऊपर, तुम अपने आप को पालते हो, तुमने यहोवा की भेड़ों को नहीं पाला, तुमने अपने आप को पाला है।
यहोवा की भीड़ों को ठगा है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल का कल्ट देके। यू लूटेड माई शीप, यू ट्विस्टेड माई वर्ड। मैंने आपको बताया वो क्या करते हैं, यहोवा के कलाम को ट्विस्ट करते हैं। ज़पनाया चैप्टर नंबर 3 वर्सेस 3 to 4 पढ़िएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया उनकी जो किंग्स हैं और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी जो जुडिशरी है। ज़पनाया सपन्या 3 के 3 और 4 में लिखा है। उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो करप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है, उनकी जुडिशरी न्याय प्रणाली भ्रष्ट है। और क्या लिखा आगे, उनके जो याजक हैं टेंपल के अंदर सेवा करने वाले, उन्होंने टेंपल को पल्यूट कर दिया है। दे पल्यूटेड द टेंपल ऑफ द लॉर्ड। और क्या लिखा आगे, उनके जो नबी हैं वो छलिए हैं, वो छलते हैं, वो चैनल करते हैं स्पिरिट्स को। दे प्रोफेसाई बाय द स्पिरिट ऑफ ऊब, दे प्रोफेसाई बाय द स्पिरिट ऑफ डीमंस, दे प्रोफेसाई आउट ऑफ देयर ओन fleshly desires. They are not hearing God and they are not speaking from God. They are misleading the flock. They are misleading the household of God. और क्या लिखा है, उनके जो स्क्राइब्स हैं उन्होंने परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट किया है। They twisted the word. They gave their own interpretation. They put a new spin on the word of God and cheat people. सो बीजो बीजो ते वड्डो, बीजो ते वड्डो, वड्डा मीन वड्डी बरकत। परमेश्वर के कलाम के कॉन्टेक्स्ट से उसे बाहर निकाल के लोगों को ठगते हैं, छलते हैं। दैट इज़ व्हाट गॉड इज सेइंग। और प्रभु क्या बताता है, जब परमेश्वर के कलाम को वो करप्ट करते हैं फिर जजमेंट आती है, प्लेग्स आती हैं। प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है मैं सोड भेजूंगा। 70 टाइम्स ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु ने कहा जब ये काम करोगे मैं तलवार भेजूंगा, मैं फैमिन भेजूंगा। और प्रभु कहते हैं मैं पेस्टिलेंस भेजूंगा। 3 बातें 70 टाइम्स कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। फिर प्रभु क्या कहते हैं यिर्मयाह एजेकियल में, अगर तुम तब भी ना पीछे पलटे, अगर तुमने तब भी तौबा ना की तो मैं बीस्ट भेजूंगा। पंजाबी में तो जंतु लिखा है, लेकिन बीस्ट का मतलब होता था एम्पायर्स। जो दानियल दर्शन देखता है, एक बहुत बड़ा स्टैचू है, गोल्ड है सर उसका, जो ब्रेस्ट है उसकी चेस्ट है वो सिल्वर है, नीचे ब्रास है और लेग्स आयरन की हैं और जो टोज और फीट हैं वो आयरन मिक्स क्ले के हैं। ये है बीस्ट किंगडम जो इज़राइल के विरुद्ध में उठी, जिन्होंने इज़राइल को परसिक्यूट किया, इज़राइल को स्लेवरी में लेके गए, एग्जाइल में मारा कुचला। क्यों प्रभु ने ऐसा होने दिया? Because they did not hearken unto the Lord, because they did not keep the commandments of God, because they did not follow the law of the Lord. Rather, they perverted the ways of God. They twisted the scriptures. They corrupted the word. Their rabbis, their teachers put a new spin on the word of God. And they taught false things. Their prophets prophesied false things. That is why the judgment fell upon them. And they were worshipping Baalim, the groves and the planets, the stars. The Lord said, I will send the judgment. अभी ये जजमेंट चल रही है पृथ्वी पे, ये प्लेग। बेशक इसे चाइना वुहान लैब में मैनिपुलेट किया, आई एग्री। इसे साइंटिफिकली मैनिपुलेट किया है, इसकी म्यूटेशन को एनहांस किया है, आई एग्री विद दैट। बट इट इज सॉवरेन गॉड हु हैज़ लेट इट अनलीश्ड अपॉन द अर्थ। यहोवा ने इसे पृथ्वी के ऊपर छोड़ा है। यहोवा के नौकर हैं ये सब बदरुएं, यहोवा के दास हैं। यहोवा की परमिशन के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। दिस इज अ विशियस प्लेग। द लॉर्ड सेज आई विल सेंड द सोर्ड, तलवार। फिर कहता अकाल, फिर कहता है प्लेग। सुने ध्यान से, पढ़े प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। उसके अंदर दूसरा घोड़ा है, उसके ऊपर जो बैठा है उसके हाथ में सोर्ड है, तलवार है, और वो लाल घोड़ा है लड़ाई का।
देखिए अभी लड़ाइयाँ हैं चारों ओर। इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना पाकिस्तान वॉर कैन टेक प्लेस एनी टाइम। साउथ सी के अंदर वॉर लग सकती है जिसमें बहुत से कंट्री इन्वॉल्व हो सकते हैं। ईरान हैज़ ऑल द इंटेंशन टू एंगेज Israel in all out war. It is inevitable, you can't stop it. बाइबल इसे गॉग मगोग की लड़ाई कहता है, ये आने वाली है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज रियली रियली अपसेट विद चाइना। एनी टाइम अ वर्ल्ड वॉर कैन हैपन। और फिर प्रभु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने, पढ़िए कलाम को, यीशु मसीह ने कितनी डिमेंशंस में बोला साइन आएंगे। जो मैंने शुरू किया आज आपको वचन, सिमियन साइन के तौर पे दिया गया प्रकाशित वाक्य। द वर्ड इज सिमियन। प्रकाशित वाक्य बिल बोर्ड है यहोवा का, हार बिंजर हैं जो ऊपर से आ रहे हैं नीचे, ताकि पृथ्वी के लोग जाने कि पृथ्वी पे कितना बुरा समय आ रहा है। बैड टाइम इज कमिंग अपॉन द अर्थ। जीसस in his Olivet discourse talked about all these things. The first thing that Jesus said, which he reiterated 4 times, he said, beware lest ye be deceived. Beware lest ye be deceived. Then he talked about false prophets, then he talked about false teachers, then he talked about great falling away inside the church. Jesus laid more emphasis on the corruption that will happen inside the church. Celebrity preachers will bring out the doctrine of demons. Paul writes to Timothy, they will preach the doctrine of demons, didaskalia daimonian. Didaskalia is a Greek word for doctrine. Daimonian is demon, and it is a very profound word, daimonian. It's dia plus monian. Dia means to scatter, disseminate, distribute, and monian means fortune. They will bring a doctrine of distributing fortune to people. लोग कैसे भागे जाते हैं? कोई कहता है मिलियनियर अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर। A false prophet says I have a millionaire anointing. People just rush to the venue to capture the millionaire anointing. In order for you to get a millionaire anointing, you need to sow $1,000. तो लोग दौड़े जाते हैं मिलियनियर अनॉइंटिंग लेने के लिए। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर्च्यून। डिडास्कलिया डियामोनियन, पढ़िए ग्रीक में। डियामोनियन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर्च्यून। तो वो जो हॉर्स है, रेड हॉर्स इज वॉर. Jesus said there will be war and rumors of war. But before that, Jesus talked about perversion that will happen in the church, false teaching that will come in the church, झूठी शिक्षा जो कलीसिया में आएगी. मैंने आपको वचन दिया, सपन्या 3 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ें. वहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि राजा लोग भ्रष्ट होंगे. जो चलाने वाले इजरायली कौम के अधिकारी हैं वो भी भ्रष्ट हैं, और जुडिशरी भ्रष्ट है, न्यायपालिका भ्रष्ट है, न्याय नहीं है. फिर प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि जो नबी हैं, नबी, वो नबी कैसे हैं? छलिए हैं, छलिए, छलते हैं लोगों को, झूठी भविष्यवाणी करते हैं. फिर प्रभु क्या कह रहा है? याजकों ने परमेश्वर की हैकल को पवित्र किया है, परमेश्वर का घर पलूट कर दिया याजकों ने. फिर क्या लिखा है? कि वो कलाम को तोड़ मरोड़ रहे हैं. देखते हैं आप, सारे के सारे डिपार्टमेंट करप्शन में डूबे हैं. मनी 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 मनी, प्रभु के नाम पे जस्ट मनी 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 मनी, और जजमेंट गिरी. मैंने आपको बताया ये जो हॉर्सेस आप देख रहे हैं ना प्रकाशित वाक्य के, ये समझिए क्या है. रेड हॉर्स जो है वो वॉर है. ये साइमल्टेनियसली घूमते हैं पृथ्वी पे. ये मत सोचिएगा एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा है. ये साइमल्टेनियसली भी घूम रहे हैं लगातार. वॉर आपके मुहाने पे खड़ी है.
और उसके बाद नेक्स्ट है काला घोड़ा, उस पर एक तराजू लेके बैठा है। खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, 100% हाइपर इन्फ्लेशन होगी, हाइपर इन्फ्लेशन। तीसरा हॉर्स क्या है? तीसरा हॉर्स को पेल ग्रीन हॉर्स कहा गया। लेकिन तीसरा घोड़ा ऐसा घोड़ा है जिसका नाम दिया गया है। तीसरे घोड़े का नाम है क्लोरॉस, जिसे पेल ग्रीन कहा गया है। क्लोरॉस से वर्ड निकलता है क्लोरीन, जो कि बायोलॉजिकल वॉर को दिखाता है। ये बायोलॉजिकल वॉर चल रही है, जो वायरस है ये, इसे वुहान लैब में चाइना ने बनाया है वेस्टर्न कंट्रीज़ को तोड़ने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आखिरी किला है जिसको सोशलिस्ट लोग गिराना चाहते हैं। सोशलिस्ट, ग्लोबलिस्ट, लिबर्टर्ड्स, डेमोक्रेट्स, फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी, लूसीफेरियन और दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग अमेरिका पे कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए ये वायरस भेजा गया है कि अमेरिका के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया जाए। एंड दे टेक अमेरिका, दे कैन टेक द होल वर्ल्ड। और प्रभु क्या कहता है? कहता है ये 3 मैं भेजूंगा। क्या भेजूंगा तुम्हारे ऊपर? प्रभु कहता है मैं तलवार भेजूंगा, मैं अकाल भेजूंगा, मैं मरी भेजूंगा। अगर फिर भी तुम नहीं पलटे तो फिर मैं बीस्ट भेजूंगा। और वो बीस्ट भेजता रहा। जो एम्पायर्स थीं जो इज़राइल के विरुद्ध खड़ी हुई, बहुत सी एम्पायर खड़ी हुई जो इज़राइल के विरुद्ध में आई। टर्किश एम्पायर आई, ऑटोमन एम्पायर आई, फिर बिजेंटाइन एम्पायर आई जो इज़राइल के विरोध में खड़ी हुई, मुस्लिम क्रूसेडर आए जो इज़राइल के विरोध में खड़े हुए, फिर रोमन एम्पायर आई जो इज़राइल के विरोध में खड़ी हुई, ग्रीक एम्पायर इज़राइल के विरोध में खड़ी हुई, फिर बेबीलोनियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, मीड्स की एम्पायर इज़राइल के विरोध में खड़ी। सब वर्ल्ड एम्पायर ने इज़राइल को क्रश करने की कोशिश की। लेकिन ये जो बीस्ट आएगा, ये आखिरी बीस्ट है, जिसके विषय में दर्शन क्या देखता है दानियल? कि वो स्टैचू के पाँव हैं, ये मिक्स्ड हैं, ये मिक्स्ड किंगडम होगी। ये वो किंगडम होगी भाई और बहनों जिसके अंदर ह्यूमन डीएनए को ब्लेंड किया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बहुत टीचिंग दी है। क्रिस्पर कैस9 की, एपिजेनेटिक्स की, कैमराज की और साइबोर्ग की, सिंगुलैरिटी की, बहुत सारी टीचिंग दी है। वीडियो आप देख सकते हैं। फेसबुक पे मैंने लगभग 1200 से ज़्यादा वीडियोस डाले हैं। 1200 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1100 घंटे की शिक्षा है। पढ़िएगा। बहुत 30 साल 31 साल प्रभु के संग चला हूँ, तब ये फल पैदा हुए हैं जो मैंने आपके साथ बांटे हैं। तो इन्हें सीखिए। ये ऐसे नहीं किताब खोली और शुरू हो गया मैं, कि खोला एक चैप्टर और शुरू हो गया। मुझे 31 साल प्रभु के संग चलते हुए, और प्रभु मुझे पूरे विश्व के अंदर लेके गया सेवा करने के लिए। 31 सालों का अनुभव, और बहुत कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया विज्ञान के विषय में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम फिज़िक्स, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर साइंस, जेनेटिक साइंस। परमेश्वर ने हर फील्ड में से मुझे ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा ये मैसेज पवित्र आत्मा तैयार करता है मेरे अंदर। यूँ ही नहीं कि मैं किताब खोली और बैठ गया, जैसे बहुत सारे लोग लगा है उनको कि हमें बस अब ऑनलाइन करना ही है। प्रभु ने मुझे कुछ दिया जो मैं आपको देता हूँ, तो इसे अपने अंदर रचने दीजिए और इसे लोगों में फैलाइए। तो ये बहुत साल प्रभु के संग चलने के बाद मिला है। हालेलुया। और बहुत अध्ययन भी मैंने किया है विश्व भर में, 100 से ज़्यादा देशों के अंदर घूम घूम के प्रभु का प्रचार किया है और सीखा है प्रभु के आत्मा से। क्योंकि मैं अपने विषय में कुछ नहीं बोलता कभी भी, क्योंकि मुझे अपने विषय में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे उसके विषय में बोलना है जिसने मुझे पाप के गटर में से निकाला है, जिसका नाम है यीशु मसीह नासरी। लेकिन हमारे देश की संस्कृति ये है, हमारे देश में लोग जो ज़्यादा मुंह से बकबक करता है ना, ज़्यादा अपना दिखावा करता है, उसको ही सुनते हैं लोग।
और अंधकार इतना है कि सच्चे प्रभु के दासों को नहीं जानते लोग, सच्चे और झूठे के बीच का भेद नहीं समझते। प्रभु अपने वचन में कितनी शिक्षा दे रहा है पहचानने के लिए। झूठे शिक्षक, झूठे नबी, झूठे प्रचारक और झूठे पासवानों को कैसे पहचानना है। पढ़ो प्रभु कलाम में कितनी शिक्षा, यही तो शिक्षा बता रहा हूँ आपको। कितनी डिसर्नमेंट की बात करता है प्रभु। तो हर एक चीज हमारी आंखों के आगे है, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। हमारे पंजाब में तो लोगों को आदर करना ही नहीं आता सच्चे प्रभु के दासों का। जहाँ पे थोड़ा दिखावा, शौकी, बड़ी बड़ी स्टेज, थोड़ी फुकरागिरी, उधर भागते हैं लोग। बहुत म्यूजिक लगा है, फुकरागिरी दिखाई दे, वो सब शारीरिक काम है भाई। आपको अगर प्रभु के बंदे हो तो आपको समझ आएगी कि प्रभु की हजूरी होती क्या है, प्रभु का अभिषेक होता क्या है। जहाँ पवित्रता ही नहीं वहाँ प्रभु की हजूरी हो नहीं सकती। जहाँ पे यीशु मसीह का लहू नहीं वहाँ पवित्रता ही हो नहीं सकती। जहाँ पे यीशु मसीह का क्रूस ऊंचा नहीं किया गया वहाँ प्रभु हो नहीं सकता। जहाँ पे क्रूस पे चढ़ाए गए लोग नहीं वहाँ यीशु मसीह की हजूरी हो नहीं सकती। जहाँ पे सच्चा कलाम नहीं वहाँ यीशु मसीह की हजूरी हो नहीं सकती। जहाँ तंग मार्ग, सकरे मार्ग की सेवकाई है, जहाँ पे तंग फाटक में से घुसने का पैगाम है, जहाँ पे शरीर, शरीर की वासना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड को क्रूस पे चढ़ाने का प्रचार है। घमंड से तो बहुत सारे मैं अगुओं को देखता हूँ घमंड से भरे हुए हैं। जो सच्चा प्रभु का कलाम देते हैं उनका विरोध करते हैं। बल्कि चाहिए उन्हें यह कि सच्चा प्रभु का वचन देने वाले दासों को, सच्चे नबी, सच्चे संतों को अपनी कलीसिया में बुलाओ और उनको मीटिंग रखवाओ ताकि उनके द्वारा आपकी कलीसिया के लोग बरकत पाएं। बल्कि आप उनके लिए दरवाज़ा बंद करते हो और अपनी कलीसिया को भी बुरी बातें बोलते हो उनके विषय में। तो भाई जब दंड आएगा ना आपके ऊपर तो यहोवा बैंड बजा देता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ज्ञान नहीं है सच्चे कलाम का, परमेश्वर की सच्ची हजूरी का, परमेश्वर के सच्चे मार्गों का, तो प्रभु के सच्चे दासों का विरोध मत कीजिए। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, यू कैंट अफोर्ड इट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यू कैन नॉट अफोर्ड इट। हालेलुया। तो प्रभु कहता है स्कॉर्पियन की तरह हैं झूठे नबी, बिच्छू हैं झूठे नबी। इज़िकियल 2:6 में प्रभु कहता है झूठे नबी बिच्छू हैं। झूठे शिक्षक जो हैं वो कांटे हैं, ऊंट कटारे हैं, और झूठे नबी बिच्छू की तरह डसते हैं। और मत्ती 7:15 में प्रभु कहता है ये गडरिये, मैंने आपको बताया गडरिये क्या करते थे, भेड़ की ऊन उतारते थे और भेड़ की ऊन से बिल्कुल भेड़ों की तरह ही कपड़ा सिल लेते थे। और जब एक मनुष्य, एक गडरिया भेड़ की खाल का पूरा वस्त्र बना के अपने ऊपर पहन लेता था तो वो भेड़ ही लगता था। तो प्रभु कहता है ये झूठे नबी, ये भेड़ नहीं है, ये भेड़िए हैं, भेड़ों को खाने वाले। ये हायरलिंग हैं, किराए पे हैं, ये समर्पित नहीं, प्रभु के द्वारा चुने नहीं, प्रभु के लहू से खरीदे नहीं हैं। तो वो क्या करता है हायरलिंग, किराए वाला जो गडरिया है, जब भेड़िया आता है तो भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है, भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है और भेड़ें तितर बितर होती हैं। वही शब्द है यहाँ पे स्कॉर्पियन के लिए। स्कॉर्पियाजो शब्द का मतलब होता है तितर बितर करना। ये झूठा नबी वो हायरलिंग है। इज़िकियल 2:6 में जो वर्ड है स्कॉर्पियन, बिच्छू, ये वर्ड है ओरिजिनल स्कॉर्पियाजो। स्कॉर्पियाजो का मतलब होता है बिखेर देना, तितर बितर कर देना। ये तितर बितर करते हैं। सच्चा कलाम कभी तितर बितर नहीं करता। कई बार लोग सच्चे कलाम, सच्चे वचन को छोड़ के झूठी कलीसियाओं को छोड़ देते हैं, झूठे पासवानों को छोड़ते हैं। वो तितर बितर नहीं है, वो लोग प्रभु की ओर इकट्ठे हो रहे हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? जब यीशु मसीह के चेले आके यीशु मसीह से कहते हैं हमने देखा आपके नाम में एक व्यक्ति बदरूएं निकाल रहा है, हमने उससे कहा हमारे साथ मिल जा, वो मिला नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा ही इज़ गैदरिंग, ही इज़ नॉट स्कैटरिंग। वो इकट्ठा कर रहा है, वो बिखेर नहीं रहा है, क्योंकि वो स्कॉर्पियन नहीं था। ही वॉज अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ गॉड।
हालेलुया। तो ट्रू जो खुदा का बंदा है वो विषम में कहीं भी कलाम सुना रहा है, वो भेड़ों को परमेश्वर के गले में इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का गला पूरे विषम में है। परमेश्वर का गला एक गांव के अंदर एक छोटी सी कलीसिया मत समझिए, एक शहर की एक लेन के अंदर छोटी सी चर्च मत समझिएगा। मुझे प्रभु ने बताया तूने मेरे राज्य के लिए काम करना है, ये मुझे आदेश दिया। और प्रभु ने मुझे कहा मेरा राज्य पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में मेरे राज्य का निर्माण तूने करना है, ये मुझे मैंडेट दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं कभी मुझे ये प्रॉब्लम हुई नहीं कि जो वो भेड़ को चोरी करके ले गया, वो फलाने को ले गया, ढमकाने को ले गया। आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। मुझे मालूम है परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के राज्य की विधियाँ, परमेश्वर का राज्य कैसे फंक्शन करता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि ये स्कॉर्पियंस हैं पर तू इनसे मत डरना। इज़िकियल 2:6 में, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ देम, उनसे मत डरना, मैं तेरे संग हूँ, प्रभु कहता है। ये ऊंट कटार हैं झूठे शिक्षक, इनसे मत डरना, मैं तेरे संग हूँ। उनके चेहरे देख के मत घबराना, आई एम विद यू। हालेलुया। मैं तेरे संग हूँ। आपको मालूम इज़राइली लोग एक प्रार्थना करते हैं जिसे क्षमा कहते हैं। वो ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 से लेकर 6 वचन तक है। वो उसे रिपीट करते हैं, उस प्रेयर को, उसे क्षमा बोलते हैं। क्षमा का मतलब होता है हियर, सुन, हार्कन, लिसन। लेकिन क्षमा एक बहुत प्रोफाउंड वर्ड है। क्षमा का मतलब केवल सुनना नहीं होता, क्षमा का मतलब होता है सुन और मान, आज्ञा। हियर एंड डू, हियर एंड ओबे, उसे क्षमा बोलते हैं। सुन और आज्ञा मान, हियर एंड ओबे। वही वर्ड जो है वो आपको न्यू टेस्टामेंट में भी मिलता है। न्यू टेस्टामेंट में वो वर्ड है आकियो, आकियो। और आकियो का मतलब होता है सुनना। तो ग्रीक हिब्रू जितनी प्रोफाउंड नहीं है। तो ग्रीक में वर्ड है आकियो, मीन्स हियर, सुन। लेकिन दूसरा वर्ड ग्रीक में है हुपो आकियो, सुन और आज्ञा मान। प्रभु का वचन सुनना है आज्ञा मानने के लिए, विचार विमर्श गोष्ठी करने के लिए नहीं सुनना प्रभु का वचन। When you hear, you will obey, that is understood। जब आप सुनते हो तो उसकी आज्ञा मानोगे। किसकी? यहोवा की आवाज की। यहोवा परमेश्वर ही सुनने वाले कान देगा। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं जब तक पिता किसी को मेरी ओर ना भेजे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। सुना आपने प्रभु का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में? पिता जब तक किसी को मेरी ओर ना भेजे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हम प्रार्थना करते रहें लोगों के लिए, उनके छुटकारे के लिए। हम प्रार्थना करते रहें वो शैतान के चुंगल से छूट जाएं। प्रेरित पौलुस 26 अध्याय प्रेरितों के काम में राजा अग्रिप्पा के आगे क्या गवाही देता है? वो देता है कि मैं अंधकार में था, मैं अपने यहूदी धर्म के अंधेरे में था और ये सारे काम करता था, पर वो ज्योति जो सूर्य के तेज से कहीं प्रचंड ज्योति थी, वो ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह रोशनी है, सूर्य से प्रचंड रोशनी है। उस रोशनी की एक भेंट से शाऊल पौलुस बन गया। और जब वो अपनी गवाही देता है तो राजा बोलता है कि यू हैव ऑलरेडी मेड मी अ क्रिश्चियन, यू हैव ऑलमोस्ट मेड मी अ क्रिश्चियन। तू तो मुझे पूरी तरह लगभग लगता है कायल ही कर देगा। क्या तू चाहता है कि मैं क्रिश्चियन? तू क्या चाहता है? तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रभु का बंदा प्रेरित पौलुस को जंजीरों के अंदर बांधा हुआ है, वो कैदी है रोम के राजा का और उसका सर काट दिया जाना है, उसको मालूम है। लेकिन वो कैसर के आगे 25 अध्याय में दुहाई क्यों देता है? क्योंकि वो रोमन एम्पायर में जाके यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना चाहता है, पूरी रोमी किंगडम में यीशु मसीह की गवाही देना चाहता है। हालेलुया। और सुने क्या कहता है, मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ, बहुत अद्भुत वचन है। प्रेरित पौलुस अग्रिप्पा राजा के आगे बोल रहा है। 26 अध्याय प्रेरितों के काम, पंजाबी की बाइबल में से पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। ਜਾਂ मैं प्रधान याजकां तो इख्तियार ਅਤੇ हुक्म पा के इस गल उत्ते दमिश्क ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। हे राजा, दोपहर ਦੇ ਵੇਲੇ मैं आकाश ਵਿੱਚ
ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਜਲੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਮਕਦੀ ਵੇਖੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਭੌਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ मैं एक आवाज़ सुनी जो इब्रानी भाख्या विच मैनू इयों आखदी सी। हिब्रू बोल रहा है जीसस। अभी एक भाई मुझे कह रहे थे पंजाबी काफ़ी है जी, चलो ठीक है पंजाबी ठीक है, पढ़ते जाओ, बट अगर आप सीख सकते हो तो क्यों सीखने का यत्न नहीं करते? अनपढ़ लोग अमेरिका जाते हैं उधर अंग्रेज़ी सीखते हैं, कई लोग कनाडा जाते हैं फ्रेंच सीखते हैं, लेकिन प्रभु के वचन के लिए यत्न नहीं कर सकते लोग, वहाँ बहाने लगाते हैं। सुने क्या लिखा है यहाँ पे, हम ज़मीन पे गिर गए तो क्या कहता है, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਭੌਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸ਼ਾਊਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਣ ਦੀ ਆਰ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? प्रभु बोलिया मैं यस्सू हाँ जिन्हों तू सतांदा है। किसको सता रहा था पलूस? यीशु मसीह के लोगों को, चेलों को, कलीसिया को। लेकिन कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। हालेलुया। तो वो किसे सता रहा है? यीशु मसीह को सता रहा है। तो क्या कहता प्रभु से? प्रभु से कहता है पर उठ जा, अपने पैरों ते खलो जा। क्यों? जो मैं तेनों इसलिए दर्शन दिता भई उन्हां गल्लां दा जिन्हां विच मैं तेनों वेख्या अते जिन्हां विच मैं तेनों विखाई देंगा, तेनों सेवक अते साखी ठहरावांगा। प्रभु कहता मैं तुझे दिखाई देता रहूँगा और तुझे प्रकाश दूंगा अपने, और तू मेरा गवाह ठहरेगा। हालेलुया। मैं तेनों इस कौम अते पराइयां कौमां तो बचावांगा जिन्हां कोल मैं तेनों घल्लदा हाँ, तां जो तू उन्हां दियां अखां खोल दवें भई ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਅਤੇ शैतान ਦੇ वसों परमेश्वर ਵੱਲ मुड़न। हालेलुया। अंधेरे से रोशनी में आए, शैतान से परमेश्वर की ओर आए, पापां ਦੀ माफ़ी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ जो मेरे उत्ते नीचा करके पवित्र होए हैं विरसा पाण, वो पापों की क्षमा पाएँ और मिरास हासिल करें। ये है गहरी बात। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैं उस स्वर्गी दर्शन तो बेमुख ना होया, सगों पहला दमिश्क दे रहण वाले अते यरूशलेम अते सारे यहूदिया देश विच अते पराइयां कौमां नूं भी उपदेश कीता भई तौबा करो अते परमेश्वर वल मुड़ो अते तौबा दे लायक काम करो। इन्हां ही गल्लां करके यहूदिया ने मैनूं हैकल विच फड़ लिया अते मेरे मार सुट्टण दे पिछे पए। सो परमेश्वर दी मदद पा के मैं अज ताईं खड़ा हाँ अते छोटे वड्डिआं अगे साखी दिंदा हाँ। अर जिहड़ियां गल्लां नबियां अते मूसा ने आखियां हन पई होणगीआं, उन्हां तो बिना मैं होर कुछ नहीं कहंदा कि जरूर है जो मसीह दुख झल्ले अते मुरदियां दे विचों जी उठण तो ऐस कौम अते पराइयां कौमां नूं भी चानण दा प्रचार होवे। हालेलुया। तो फेस्टस की कहंदा है, पढ़े आगे सारी बातें। क्या कहता है फेस्टस? या मैं उसका 28 वचन पढ़ता हूँ। अग्रिप्पा क्या कहता है? अग्रिप्पा ने पलूस नूं आख्या तेनू आस होगी भई मैनू थोड़े ही कीते मसीह कर लवें। पलूस बोलिया परमेश्वर करे भावें थोड़े बहुते कीते, निरा तुसी ही नहीं पर वो सब भी जिहड़े अज दे दिन मेरी सुनते हैं। इन्हां बंधना तो बिना इहो जे हो जाण जिहो जिहा मैं हाँ। कहता मेरे जैसे हो जाए, केवल जंजीरें ना हो जो मेरे को पाँव और हाथों में पड़ी हैं। तो पिता खींचता है प्रभु की ओर। ये काम पवित्र आत्मा का है, हमारा नहीं है। हालेलुया। दिस इज़ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट लोगों को अपनी ओर खींचेगा। आपका काम है गवाही देना। यीशु मसीह का वचन लोग गवाही देते नहीं। गवाही का मतलब ये नहीं है सिर्फ मैं बीते एतवार प्रभु ने मुझको बहुत चंगा रखा, प्रभु ने मेरे को बहुत बरकत दी, हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। चर्च के अंदर ही गवाहियाँ देते हैं लोग हर संडे। ठीक है वो भी दो, लेकिन गवाही तो भाई बाहर है। ज्योति अंधियारे में चमकती है। आपके पास अगर कार है तो कार की हेडलाइट कब जगाते हो आप? दिन में जगा के घूमते हो या रात को? तो ये गवाही अन्य जातियों में ज्योति को अंधकार में चमकना है। आप गवाही देते जाएं मसीह की और प्रार्थना करें। बाकी काम प्रभु यीशु मसीह का, आपका नहीं है। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के काम करने का खुद जिम्मा ले लेते हैं, और जो काम हमने करना होता है वो यीशु मसीह को कहते हैं आप करो,
और जो हम यीशु मसीह ने हमें दिया होता है वो हम कहते हैं प्रभु जी आप करो, और जो प्रभु ने करना होता है वो हम खुद करना चाहते हैं। कई बार हम अहंकार से बोलते हैं मैंने ये काम कर दिया, मैं इतनी बड़ी कलीसिया का सेवक, मैं फलाना। अरे भाई ये सारा काम तो यीशु मसीह का है, तेरा नहीं है। इसलिए महिमा यीशु मसीह को दें। हालेलुया। आज एक बार और सेशन करेंगे हम, कल की भी भरपाई कर देंगे, और ये अपना सब्जेक्ट जो ट्री ऑफ लाइफ है इसे हम कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ, अभी तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तो दोपहर के बाद जब हम करेंगे देयर विल बी मैनी मोर। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु भाई इंद्रप्रीत को अपने हाथ में लीजिए, इंद्रप्रीत सिंह को, सिस्टर एग्नेस लाल को, अमरजीत कौर को, विशाल दोषे को, जॉन थॉमस को, हरपाल बाजवा को, प्रभु बहादुर सिंह आकाश, जगीर मसीह जी को, उनके घराने को, जॉन थॉमस को प्रभु अपने हाथ में लीजिए। ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता को ब्लेस कीजिए। प्रभु आपके राज्य में बोने का भाई को 100 गुना प्रतिफल दीजिए। प्रभु संदीप लोटस को, डेजी वीएस को अपने हाथ में लीजिए। प्रभदीप उसके घराने को अपने हाथ में लीजिए प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया। प्रभु मैं हरजीत सिंह रिंका को भी आपके हाथ में देता हूँ, आपका लहू इस भाई पे छिड़कता हूँ। साइमन मसीह को, कोमल मसीह को आपके हाथ में देते हैं, आपके लहू को छिड़कते हैं। पूजा बिष्ट के ऊपर आपका हाथ हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हो प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सुनीता को, और आज जहाँ जाते हैं आपका वचन लेके ब्रिटेन में, प्रभु आपका दूत, आपकी हजूरी का दूत उनके आगे आगे चले खुदाबंद। हालेलुया। प्रभु एक एक जन को ब्लेस कर दीजिए, अपने लहू में छिपाइए। आपका धन्यवाद। मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ खुदावंद। प्रभु मैं सिस्टर डायना क्रिस्टी के लिए जो कनाडा में प्रार्थना करता हूँ, आपका खून उन पे, उनके घराने के ऊपर छिड़कता हूँ। प्रभु हम दोबारा जब सेशन में मिले सबको एकत्रित कीजिएगा। यीशु मसीह आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। आमीन।